Today's topic is elementary transformations of a matrix and its application to find the inverse of a matrix. So, elementary transformation of a matrix. So, these are some operations, means which types of operations we can apply on a matrix. So we have three kinds of operations which we can apply on a matrix. These are these three operations. So we cannot apply any operation other than these three operations. So these operations are called elementary transformations of a matrix. So elementary transformations are any of the following operations on a matrix. So what type of operations we can apply on a matrix? First operation, we can interchange any two rows or two columns. Clear? Means for any given matrix, we can interchange any two rows, means we can interchange row one row to other row, or we can interchange one column to other column. Means we cannot interchange row to column. Only the interchange rule that can be applied within rows or within columns. So suppose we have, so this is the symbolic representation, how it works. So Ri, R represents row, C represents column. So Ri interchanged with Rj. So we have interchanged ith row and jth row. So after this operation, what will be happen to the matrix? The j, the jth row of the matrix would come at ith place, ith row, and ith row will become the jth row. So this is interchange of any two rows or two columns. So similarly, we can interchange any two columns. So Ci interchange with Cj, column ith column interchange with jth column. So this is first operation we can apply on a matrix. This is first elementary transformation. Second, we can multiply the multiplication of any row by a non-zero constant. So suppose we have ith row, so we can change this ith row by alpha times ith row, and this alpha is a non-zero real number. So we can multiply a non-zero constant. Non-zero constant means constant may be any real number except 0. So this Ri, the ith row would change to alpha times ith row. So how it performs means we have to multiply alpha to each element of the ith row. ith रो के हर एक एलिमेंट में आपको क्या करना है? अल्फा का मल्टीप्लाई करना है, एंड अल्फा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर. अगर अल्फा जीरो होगा तो क्या होगा? सारे के सारे एलिमेंट उस रो के जीरो हो जाएंगे, तो नॉन जीरो रो में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हमें बस यही याद देखना है कि जीरो रोज कितनी है, नॉन जीरो रोज की है, इसका हमारा एप्लीकेशन है. सो दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन, second elementary transformation. We can multiply any row by a non-zero constant. So ith row is changed by alpha times ith row. That means each element of ith row is multiplied by alpha. Similarly for column, the ith column is changed with alpha times uh, uh, means ith column. So this is not j, this is I actually. The So similarly, each element of this particular column is multiplied by alpha. So this is the changed column. So we can multiply any non-zero constant to any of the row or any of the column. So this is the second type of elementary transformation. Now the third type is that ith row is changed with ith row plus alpha times rj.
that means addition of a constant multiple of the elements of any row to the corresponding elements of any other row. Means what we are doing here, we are changing ith row by this operation, the ith row plus alpha times jth row. So means the first element of ith row is changed, first element of ith row plus alpha time first element of jth row. Similarly for second element in ith row, second element in ith row plus alpha times second element in jth row. So this is like, means suppose R1 changed with R1, suppose plus 2 times R3. So what we are doing here, we are changing R1 like R1 plus 2 R3. That means the element of first row plus 2 times corresponding element of third row. Corresponding element means अगर आप फर्स्ट को चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट को 2 का मल्टीप्लाई करना है प्लस इसमें ऐड करना है. सेकेंड एलिमेंट को कर रहे हो तो सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो का वो लेना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड करना है. तो ये ऑपरेशन किस पर होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा. So whenever we are saying Ri is changed, that means each element of this row is changed. So each element is changed like Ri plus alpha times Rj. Similarly for columns, that Ci, any ith column is changed with Ci plus alpha times Cj. So actually this is the combination of these two operations. We are multiplying alpha times Rj, means Rj is changed with alpha times Rj, and then we are adding Ri to alpha times Rj, and this is Ri. So the third operation is addition of a constant multiple of the elements of any row to the corresponding element of any other row. So this is third operation. And similarly for columns. So we use only rows to change the means to apply this operation. Means we cannot like write like Ri change to Ri plus alpha times Cj. Cj को हम यूज नहीं कर सकते. जब भी R रो चेंज होगी तो रो का ही यूज होगा और कॉलम चेंज होगा तो कॉलम का ही यूज होगा. So these are three elementary operations or elementary transformation of on a matrix. So हमें तीन टाइप के ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं. या तो हम किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो में नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी रो में किसी दूसरे रो के कांस्टेंट मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर कॉलम्स पर भी हम सेम चीज तीनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर थ्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन which we can apply on any particular matrix. Now some definitions. The elementary matrix क्या है, equivalent matrices क्या है, and row equivalent matrix क्या है. So first definition, elementary matrix. So an elementary matrix is a matrix obtained from a unit matrix I. So we have one unit matrix, capital I, identity matrix, on which any one of the above mentioned operation has been applied. So means suppose we have identity matrix I. Now what we do, we apply any one operation out of these three. Clear? Means suppose we have interchanged first row and second row, or suppose second row is changed with 1/3 times second row, or R3 changed to suppose R3 plus 2 times R1. तो इनमें से हम कोई भी एक ऑपरेशन अगर अप्लाई कर देंगे तो जो आइडेंटिटी चेंज्ड होके जो नया मैट्रिक्स बनेगा I dash सपोज, मींस दिस वुड नॉट बी आइडेंटिटी नाउ. ये आइडेंटिटी है और हमने क्या किया, तीनों में से कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया. या तो इसकी किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर दिया,
किसी भी रो में हमने किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया या फिर थर्ड वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो उससे इसमें जो चेंज आएगा, तो चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, सपोज वो आई डैश है, तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस आई डैश इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स. So what is the definition? Elementary matrix is a matrix obtained from a unit matrix on which any one of these three elementary transformations has been applied. Clear? Now what is equivalent means what are equivalent matrices? So if a matrix say B, so now we have two matrices A. Suppose we have one matrix A and the matrix B is derived from another matrix A by using one or more of the above stated operations. Then A and B are called equivalent matrices. Means what we are saying, suppose we have one matrix A. Now in the first definition, elementary matrix, we have identity matrix. We have applied any one, not more than one, any one of the एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसके बाद इसमें जो चेंज आएगा, वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स. बट अब हम क्या बोल रहे हैं, टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. व्हेन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए. अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए मैट्रिक्स पर हम कितने भी ऑपरेशंस लगा रहे हैं, इनमें से कोई भी और कितने टाइम्स, मींस हम सपोज पहला भी लगा रहे हैं, दूसरा भी लगा रहे हैं, तीसरा भी लगा रहे हैं, सपोज दो लगा रहे हैं या एक लगा रहे हैं, तो ए में जो चेंज होने के बाद भी क्या बनेगा, एक ए डैश बनेगा. हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, उसके नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स है. तो अब हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स पर कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिए. कुछ का मतलब एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं. कितने भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिए, उसके बाद जो मैट्रिक्स बना, सपोज वो ए डैश है. सो जो ए डैश बनेगा और जो ए बनेगा, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. इसको भी इक्विवेलेंट बोलेंगे क्योंकि आई भी एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया है तो हमें आई डैश मिल रहा है. दीज आर आल्सो कॉल्ड आई एंड आई डैश आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. बट डिफरेंस क्या है इन दोनों डेफिनेशन में, इसमें हमें आइडेंटिटी पर ही, और वो भी एक आइडेंटिटी पर ही ऑपरेशन लगाना है, प्लस एक ही ऑपरेशन लगाना है. बट इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में आप कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो. आपके पास ए है, तो हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स बी इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर मैट्रिक्स ए. कोई मैट्रिक्स बी है जो ए से डिराइव हो रही है. कैसे डिराइव हो रही है, बाय यूजिंग वन और मोर ऑफ द अबव स्टेटेड ऑपरेशन. इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन जब अप्लाई कर देंगे ए पर, तो हमें जो मैट्रिक्स सपोज बी मिल रही है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. क्लियर? नाउ द रो इक्विवेलेंट. So we call a matrix A row equivalent to matrix B if A can be obtained from B by finitely many elementary row operations. So अभी इस definition में हम बोल रहे हैं equivalent matrices. तो हम A पर रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं और दोनों लगा सकते हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. The matrix is derived from another matrix A by using one or more of the above stated operation. तो ऐसा नहीं है केवल हमें मींस केवल रो ऑपरेशन लगाना है या केवल कॉलम लगाना है, ऐसा नहीं है. हम एक ही मैट्रिक्स पर ए पर सपोज पहले रो ऑपरेशन लगा दें, फिर कॉलम ऑपरेशन लगा दें, फिर से कॉलम लगा दें, तो कोई भी कॉम्बिनेशन, कितने भी रो लगा सकते हैं, कितने भी कॉलम लगा सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. लेकिन अब हम बोल रहे हैं व्हेन जो अब केवल हम अगर रो ऑपरेशन अप्लाई करके बी को बता रहे हैं, सपोज हमारा मैट्रिक्स ए है और हम केवल रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. एक रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं, मतलब कितनी बार भी, पहला वाला भी लगा सकते हैं, दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं, किसी भी, कितने भी, बट केवल रो ऑपरेशंस. तो जो मैट्रिक्स बनेगा नया मैट्रिक्स बी, उसको हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट टू बी. क्यों? क्योंकि हम बी से या ए से रो ऑपरेशन अप्लाई करके बी को डिराइव कर सकते हैं. तो ए इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स बी.
if A can be obtained from B by finitely many elementary row operations, केवल रो ऑपरेशन आपको अप्लाई करने, फाइनाइटली मेनी मतलब आप कितने भी लगा सकते हो रो ऑपरेशन, बट फाइनाइट ऐसा नहीं इनफाइनाइटली आप अप्लाई करते रहो, फाइनाइटली मतलब 10 100 50 1000 कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ओनली रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। क्यों, इससे हमें ये डिराइव हो रही है, ये मैट्रिक्स ए से डिराइव हो रही है। So these are three definitions. Elementary matrix means suppose we have identity matrix. Now we apply any of these 6 operation. Why 6? 3 row operation, 3 column operations. So if we apply any one out of 6 elementary transformation, then the derived matrix is called elementary matrix. Any one. We apply any one out of 6 elementary transformations, या तो कोई भी एक रो ऑपरेशन या कोई भी एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस when B or A can be derived from another matrix by using one or more of the elementary transformations। तो हमारे पास A मैट्रिक्स है, हम इस पे कितनी भी टाइम्स रो ऑपरेशन लगा लें, कितनी भी कॉलम्स लगा लें, कॉम्बिनेशन लगा लें, तो जो मैट्रिक्स बनेगा, तो ओरिजिनल और जो डिराइव्ड हुआ है उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, A इज रो इक्विवेलेंट टू B। अगर आप A से B को डिराइव करने के लिए केवल रो ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे A एंड B आर कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। और अगर आप कोई भी ऑपरेशन मतलब कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं रो प्लस कॉलम, तो दीज आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो पहले है इक्विवेलेंट जिसमें आप चाहे रो लगाइए, चाहे कॉलम लगाइए, चाहे दोनों लगाइए, और कितनी भी टाइम्स लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बार लगाना है, 2 बार लगाना है, 10 बार लगाना है, 50 बार लगाना है। और अब हम बोल रहे हैं रो इक्विवेलेंट, दीज आर इक्विवेलेंट, दीज आर रो इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब आप रो और कॉलम दोनों लगा सकते हो, रो इक्विवेलेंट का मतलब हम केवल रो ऑपरेशंस के थ्रू ही ए से बी को डिराइव करना है। क्लियर? ऐसे ही कॉलम इक्विवेलेंट भी होता है, the matrix A is called column equivalent to matrix B if A can be derived from matrix B by finitely many elementary column operation। अगर आप केवल कॉलम ऑपरेशंस यूज करके एक से दूसरी मैट्रिक्स को बना पा रहे हो तो दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। Now the application part, what is the application of elementary transformation of matrix? So now the next question is finding the inverse of a matrix using elementary transformations. This method is also called Gauss-Jordan method. So this is the method from which we find out the inverse of a matrix using elementary transformations. So it is not like अभी तक आपने क्या किया है, you find out A inverse by using that formula adjoint A by डिटर्मिनेंट ए। तो आप पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हो, फिर एडजॉइंट ए निकालते हो, मतलब को फैक्टर्स निकालते हो, तब आप वो फाइंड आउट करते हो। बट अब हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, बट यूजिंग दीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो यूजिंग दीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी विल find out the inverse of a matrix. This is called Gauss-Jordan method. So what is the process? The elementary row transformations. So it is written here only row. Elementary row transformation means we can interchange any rows, we can multiply any row to a constant non-zero constant, and Ri can be changed like Ri plus alpha times Rj. Clear? So these 3 row operations. So row, the elementary row operations which reduces a square matrix A to unit matrix, when applied to a unit matrix give the inverse of the square matrix A. So what is the definition? Means suppose we have one matrix A. So what, suppose this is our matrix A. So now what we will do, we will apply row transformation, means row operations, such that this matrix becomes identity.
हम क्या करेंगे, इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस तरह से कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर इस मैट्रिक्स पर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करें और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दें, तो जितने ऑपरेशंस हम यूज करेंगे टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर वो सारे ऑपरेशन हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगा देंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, इसका ए इनवर्स। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन, आपको करना क्या है, सो दैट इज द डेफिनेशन that how to find out the inverse using elementary transformation. The elementary row transformation which reduces a square matrix A to unit matrix, मतलब जितनी भी elementary row transformation आप यूज कर रहे हो to reduce a square matrix A to unit matrix when applied to a unit matrix, ये सारे ऑपरेशन अगर आप किसी यूनिट मैट्रिक्स पर अप्लाई करोगे, it will give you the inverse of the matrix A. So the step by step procedure is written here. What is the process? Suppose A be a non-singular matrix. Why non-singular? Because the inverse of a matrix exists only when it is non-singular. That means its determinant is non-zero. Because आपको definition क्या बताया, A inverse is adjoint A by determinant A. So determinant A अगर zero हो गया तो ये तो A inverse exist ही नहीं करेगा. Clear? सो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और जिस मैट्रिक्स का नॉन डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर. सो लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए को क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर. एंड देन आपको करना क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है. ए इज गिवन मैट्रिक्स, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. मतलब ए अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 3x3 की होगी, अगर ए 4x4 का है तो आइडेंटिटी भी 4x4 का होगा. आपको ये लिखना है. देन अप्लाई सुटेबल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस टू द LHS ऑफ द अबव इक्वेशन. मींस इसका LHS क्या है, ए. आप इस पर क्या करोगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करोगे. क्लियर? अप्लाई सेम ट्रांसफॉर्मेशन टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑन द राइट हैंड साइड. तो अब आपका पर्पस क्या है, इस ए को आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, रो ऑपरेशंस को लगाओगे कई सारे. तो जैसे आपने फर्स्ट रो ऑपरेशन के कोई लगाया, तो वही रो ऑपरेशन आप किस पर लगाओगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर. सिमिलरली आप फिर सेकंड इसको कोई सेकंड रो ऑपरेशन लगा रहे हो, तो वही सेकंड आप किस पर लगाओगे, जो भी आइडेंटिटी जो मॉडिफाइड हो गई थी फर्स्ट ऑपरेशन के बाद उस मैट्रिक्स पर. तो जितने ऑपरेशन यहाँ लगाओगे उसी सीक्वेंस में वो सारे ऑपरेशन आपको इस आइडेंटिटी पर अप्लाई करने हैं. तो ए जैसे ही आइडेंटिटी जिस स्टेप के बाद बनेगा, आई आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स. So keep on applying the same till A reduces to an identity matrix. As a result, the original identity matrix changes to A inverse. So this is the process. So you can get this process by using this example or any of the example. So finding out the inverse of matrix. So this is one matrix whose inverse is to be find out. So now using elementary transformation. तो आपको वैसे ही नहीं करना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, adjoint A, determinant A. आपको क्या करना है, elementary transformation को use करके इसका inverse find out करना है. So what is the process? सबसे पहला step क्या है, A is equal to IA आपको लिखना है. So A is given matrix. So so this is your A, 1 1 3 1 3 minus 3 minus 2 minus 4 minus 4 is equal to, so this is your A, this is your A matrix. Now identity का ऑर्डर क्या होगा, जो A का ऑर्डर होगा. तो A किस ऑर्डर की है, 3x3. सो आइडेंटिटी भी क्या होगी, 3x3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आइडेंटिटी इनटू A को आपको एज इट इज लिखना है, A में कुछ नहीं करना है, इस A में राइट हैंड साइड वाला. नाउ अब क्या आपका पर्पस है, इस A मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, कोई भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलते हैं, व्हेन इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0. मींस ये तीनों 0 होने चाहिए
और ये तीनों 0 होना चाहिए, और जो डायगोनल है 1 3 4 उनको क्या बनाना है 1। तो आपका ऑब्जेक्टिव अब क्या है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं, और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएं 0 हो जाएं। लेकिन हमें यूज क्या करना है केवल रो ऑपरेशंस। तो ये सारा काम हमें रो ऑपरेशंस के थ्रू करना है। अब किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में हमने पहले ये चेंज किया है फिर ये चेंज किया है फिर ये चेंज किया है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है टू मेक दिस मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वही सारे ऑपरेशन आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करते रहना है उसी सीक्वेंस में। तो ये लास्ट में जाके जब भी ये आइडेंटिटी बन जाएगा ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा ए इनवर्स। तो अब देखिए कैसे करना है आपको। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें डायगोनल को बचा के 1 करना है, बाकी सबको 0 करना है। तो आप क्या करिए पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को यूज करके उसके नीचे वाले दोनों को 0 कर दीजिए। क्लियर। आप अगर इस स्टेप से आप चलेंगे तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। अदरवाइज क्या होगा, अगर सपोज आपको ये पहले ये दिख रहा है कि 3 -3 है, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे एलिमेंट को करोगे चेंज तो ये फिर से नॉन 0 बन जाएगा। तो आप ऐसा मत करिए। आप कर कुछ भी सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये इसको आइडेंटिटी बनाना है, बट अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप कभी भी फंसोगे नहीं बीच में, आपकी लास्ट में ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगी। तो आपको करना क्या है, पहले फर्स्ट का यूज करके उसके नीचे 0 करिए, फिर सेकंड का यूज करके उसके नीचे 0 करिए। हो गया, ये वाले लोअर डायगोनल सारे 0 हो गए। अब आप क्या करिए, जो डायगोनल है उनको 1 कर दीजिए। तो पहला वाला 1 है, 3 वाले को पहले 1 कर दीजिए, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए। -4 वाले को कर दीजिए, उसको भी -4 से डिवाइड कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप अपर डायगोनल को 0 करिए इन्हीं को यूज करके। ठीक है, तो इस तरह को आपको सीक्वेंस रखना है। तो अब देखिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को यूज करके नीचे वाले 0 करेंगे। तो कैसे होंगे 0, R2 को 0 करना है फर्स्ट एलिमेंट, और R3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 करना है। तो R2 चेंज करेंगे एंड this is R3, this is not R2, this is R3, this is R3। क्लियर। सो आप नोट्स में उसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो ऑपरेशन क्या है, R2 चेंज टू R2 माइनस, आपको यूज किसका करना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि इसको तो 0 करना नहीं है, आपको इसके नीचे वाले सारे 0 करने हैं। तो आप इस एलिमेंट को यूज करोगे, इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे। तो R2 का ये एलिमेंट आपको इसकी हेल्प से 0 करना है। कैसे होगा, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। क्लियर। सो आपने सिमिलरली आपका ये R3 का एलिमेंट ये भी 0 करना है। तो ये R1 की हेल्प से कैसे 0 होगा, ये -2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। यही सारे रो ऑपरेशन है ना। देखिए पहले वाले में हम थर्ड वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो अल्फा की वैल्यू क्या रख रहे हैं -1, और दूसरा रख रहे हैं R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो हम थर्ड वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, सो 1 - 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब -2 को 0 करना है 1 की हेल्प से, फर्स्ट की हेल्प से, तो ये क्या हो जाएगा, R3 चेंज टू, ये R3 है, R3 चेंज टू R3, क्योंकि ये -2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, इसको ऐड कर दीजिए। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया R1 में और इसके साथ थर्ड रो के साथ ऐड कर दिया, तो R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1। अब देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो R1 एज इट इज होगा 1 1 3। नेक्स्ट R2 चेंज किया है, कैसे किया है, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, सो 1 - 1 0 0 लिखा, 3 - 1 2, -3 -3। क्लियर। यहाँ वैल्यू रखते जाइए हर पोजीशन का। तो 1 - 1 3 - 1 -3 -3, सो -6 हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, इसमें हमने क्या किया था, R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1। तो पहले देखिए R3 को चेंज कर रहे हैं, तो -2 है R3 पर, और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो -2 प्लस 2 टाइम्स R1, यानी 2 टाइम्स 1, सो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट -4 plus 2 times 1, so -4 plus 2 -2. नेक्स्ट -4 plus 2 times 3 यानी -4 plus 6, so -4 plus 6 is plus 2. तो ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन. अब जो ऑपरेशन हमने ए पर लगाए हैं वही सारे ऑपरेशन आपको क्या करना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है. क्लियर? तो वही आपको कुछ नहीं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना. जो आपने रो ऑपरेशन यहाँ लगाए वही सारे यहाँ लगाना है. पहला ऑपरेशन क्या था R2 माइनस R1, तो पहली तो एज इट इज है. R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो 1 0 0. नेक्स्ट इस R2 को चेंज किया कैसे, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, सो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0. नेक्स्ट R3, अब R3 को कैसे चेंज किया, R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स R1, सो R3 प्लस 2 टाइम्स R1, सो 0 प्लस 2 टाइम्स 1 यानी 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 टाइम्स 0 0, 1 प्लस 2 टाइम्स 0 यानी 1. सो वही सारे ऑपरेशन हमने क्या इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई कर दिए. नेक्स्ट स्टेप अब क्या है देखिए, अब हमारा ये दोनों जीरो हो गए. अब मैंने क्या बोला था आपको, आपको क्या करना है डायगोनल को 1 बनाना है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को, और उसके नीचे और ऊपर सारे एलिमेंट जीरो करने हैं. तो हमारे ये तो जीरो हो गए. अब हम इसको जीरो कर देते हैं. ठीक है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करें, अब हम R1 का यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? जैसे ही आप सपोज ये -2 है और ये 1 है, आपने अगर R1 का यूज किया तो आप क्या करोगे, टू दिस एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स दिस, लेकिन फिर उससे क्या होगा, ये जीरो नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आप पूरे रो ऑपरेशन में लगाओगे. अगर R3 चेंज कर रहे हो, R3 प्लस 2 टाइम्स R1, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये एलिमेंट नॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि 0 प्लस 2 टाइम्स 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो जो हमने जीरो किया तो वो वापस नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए हम अब R1 का यूज नहीं कर सकते हैं टू मेक दिस जीरो. अब हम क्या करेंगे, R2 का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि R2 में फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी ऐड करेंगे वो जीरो ही रहेगा. इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को यूज करके उसके नीचे एलिमेंट जितने हैं उसको जीरो करेंगे. क्लियर? तो हम डायगोनली चलेंगे, पहले 1 इस एलिमेंट का यूज करके इसके नीचे जीरो करेंगे, फिर ऐसे एलिमेंट का यूज करके इसके नीचे जितने एलिमेंट है उसको जीरो करेंगे. ये तो 3x3 का है तो 2 ही स्टेप में हो जाएगा. अगर सपोज 4x4 का मैट्रिक्स होता तो पहले इसको यूज करके ये 3 एलिमेंट जीरो करते, फिर सेकंड वाले को यूज करके उसके नीचे 2 एलिमेंट होते उनको जीरो करते, फिर थर्ड वाले को यूज करके उसके नीचे एक एलिमेंट होता उसको जीरो करते. क्लियर? इस तरह से हमें डायगोनली शिफ्ट करना है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जीरो करना है हमें, हम R2 को यूज करेंगे. क्यों, मैंने आपको रीजन बताया. सो अब क्या करना, -2 को 2 से जीरो करना है तो R3 क्या चेंज होगी, R3 चेंज टू R3 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करने से जीरो हो जाएगा. तो अब हमने केवल R3 को चेंज किया है इसलिए R1 और R2 एज इट इज होंगे, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज. नेक्स्ट R3 चेंज टू R3 प्लस R2, सो 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 2 0, 2 माइनस 6 माइनस 4. क्लियर? अब यही ऑपरेशन हम इस वाली आइडेंटिटी पर, जो ये राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स उसी पर अप्लाई करेंगे. तो हमने क्या चेंज किया, R3 चेंज टू R3 प्लस R2, तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0, सेकेंड रो एज इट इज -1 1 0 यानी -1 1 0. नेक्स्ट थर्ड को चेंज किया R3 प्लस R2, तो R3 प्लस R2, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1. क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए हमने लोअर डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो कर दिए. अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इनको 1 बनाएं, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाएं और ऊपर वाले जीरो करें. तो अब पहले हम डायगोनल को 1 बना लेते हैं, या आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. पहले आप इन तीनों को जीरो कर लीजिए, फिर लास्ट में इनको 1 1 कर दीजिए. किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस कंपलसरी नहीं है. बस ऑब्जेक्टिव है कि आपका आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट हो जाए. तो मैं पहले ये कर रहा हूँ, पहले मैं जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको 1 बना रहा हूँ. देखिए पहला डायगोनल एलिमेंट जो है दैट इज ऑलरेडी 1, इसमें हमें कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सेकंड एलिमेंट 2 है तो इसको हमें 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1/2 का किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस इज आवर सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन. वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट. तो हम ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, RI चेंज टू अल्फा टाइम्स RI. तो और केवल हम अभी रो ऑपरेशन यूज करना है, यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. हम कोई भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे.
सो अब हम क्या कर रहे हैं, वन, हमें डायगोनल को वन बनाना है क्योंकि हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वन। तो इसको वन बनाना है, इसको वन बनाना है, इसको वन, तो ये वन तो ऑलरेडी है। नेक्स्ट इस टू को वन बनाने के लिए क्या करना है हमें, इस रो में हम टू का डिवाइड कर देते हैं। सो आर टू चेंज टू वन बाई टू आर टू। सो क्या बन जाएगा, वन वन थ्री, फर्स्ट रो तो एज इट इज है। नेक्स्ट इस सेकेंड रो में हमने टू का डिवाइड कर दिया है, तो जीरो बाई टू जीरो, टू बाई टू वन, और माइनस सिक्स बाई टू माइनस थ्री। क्लियर। सिमिलरली इस माइनस फोर को हमें वन बनाना है, तो हमने आर थ्री में भी क्या कर दिया, माइनस फोर का डिवाइड कर दिया। सो आर थ्री चेंज टू माइनस वन बाई फोर आर थ्री। सो जीरो बाय समथिंग जीरो, जीरो बाय माइनस फोर जीरो, एंड माइनस फोर बाय माइनस फोर प्लस वन, सो प्लस वन। ये हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, सॉरी इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स वन हो गए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो ऑपरेशन हमने यहाँ लगाए हैं वही सारे हमें इस मैट्रिक्स में भी लगाने हैं। तो हमने क्या किया, आर टू चेंज टू वन बाई टू आर टू, तो हमने सेकेंड रो में क्या किया है, टू का डिवाइड कर दिया है, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू जीरो बाई टू। ठीक है। ऐसे थ्री में, आर थ्री में चेंज किया गया है, माइनस वन बाई फोर आर थ्री, सो माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, आर थ्री में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन बाई फोर। सारे के सारे एलिमेंट ये हो गए। फर्स्ट एज इट इज है क्योंकि फर्स्ट में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि डायगोनल एलिमेंट वन हो गए, उसके नीचे लोअर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, अब हमें अपर डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें इस वन को जीरो करना है, इस थ्री को जीरो करना है, इस माइनस थ्री को जीरो करना है, किसी भी ऑर्डर में। तो आप क्या करिए, देखिए हमने पहले क्या किया है, मैंने आर वन चेंज किया है, मैंने पहले इस थ्री को इस माइनस थ्री से जीरो कर दिया है क्योंकि ये इक्वल है, और हम इसको यूज करेंगे तो इस वन पर कोई इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीरो है, इसलिए हम R2 का यूज कर सकते हैं। आप इसका भी कर सकते हो इस वन से। आप क्या करिए आप R1 को चेंज कर दीजिए, R1 चेंज टू R1 माइनस थ्री टाइम्स R3, तो उससे क्या होगा, वन वन और थ्री माइनस थ्री जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पहले मैंने क्या किया है, मैंने यही किया है अभी। आप तो R1 चेंज टू R1 माइनस थ्री टाइम्स R3, अदरवाइज आप क्या करिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, R1 चेंज टू R1 प्लस R2। आपको बस ये याद रखना है कि जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करें उससे हमारे पहले वाले जो एलिमेंट हमें बनाने थे वो चेंज ना हो जाए, तो ये तीनों जीरो अब नॉन जीरो में कन्वर्ट ना हो जाए क्योंकि ये हमने इंटेंशनली जीरो बनाया है। सेम ये डायगोनल एलिमेंट हमने इंटेंशनली वन बनाए हैं, तो इनको बस वो चेंज ना हो जाए, ऐसे ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। क्लियर। तो मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया, आप क्या करिए, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, तो क्या होगा, वन प्लस जीरो वन नहीं रहेगा, वन प्लस वन ये टू हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसे हमें फिर से जीरो करना है, एंड थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर इसको केवल हमें जीरो करना होगा, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया है, R1 चेंज टू R1 माइनस थ्री टाइम्स R3, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा सिमिलरली अब R2 है, तो R2 में हमें यहाँ तो ये जीरो चाहिए, ये वन चाहिए और ये जीरो चाहिए अब हमें, तो इस जीरो को हमें इस वन से, आप देखिए आप इसमें R1 का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको सपोज ये माइनस थ्री को जीरो करना है, आप इस थ्री को ऐड तो कर दोगे, लेकिन उससे क्या होगा, R1 ऐड हो रहा है R2 में, तो ये वाला एलिमेंट भी नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सपोज ऑपरेशन लिखा R2 चेंज टू R2 प्लस R1, तो जीरो प्लस वन यहाँ वन हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, सिमिलरली वन प्लस वन यहाँ टू हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, तो हम R1 का यूज नहीं कर सकते हैं। R2 को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी रो का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, R2 चेंज टू R2 प्लस थ्री टाइम्स R3, जिससे क्या होगा, R2 जीरो प्लस थ्री टाइम्स जीरो जीरो, वन प्लस थ्री टाइम्स जीरो वन, माइनस थ्री प्लस थ्री टाइम्स वन, यानी माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जीरो वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे पहला ऑपरेशन, R1 चेंज टू R1 माइनस थ्री टाइम्स R3, तो वन माइनस जीरो टाइम्स थ्री वन, वन माइनस जीरो टाइम्स थ्री वन, थ्री माइनस थ्री टाइम्स थ्री जीरो, सो वन वन जीरो। तो हमने R1 चेंज किया है, R2 चेंज किया है, R3 एज इट इज है, तो R3 0 0 1 एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब यही दोनों ऑपरेशन हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है। तो R1 चेंज टू R1 माइनस थ्री टाइम्स R3,
सो R1 चेंज किया है तो दिस इज R1, ये चेंज होगा with this operation R1 minus 3 R3. So 1 minus 3 times this, 0 minus 3 times this, 0 minus 3 times this. So इसको चेंज होने के बाद 1 minus 3 times 1 minus 1 by 4. So ये बनेगा 1 plus 3 by 4. कितना हो जाएगा 7 by 4. 0 minus 3 times minus 1 by 4 यानी 0 plus 3 by 4. 3 by 4. ऐसे ही 0 minus 3 into minus 1 by 4 plus 3 by 4. तो R1 चेंज हो गया. ऐसे ही R2 प्लस 3 R3. सो R2 प्लस 3 टाइम्स ये वाली रो. सो -1/2 प्लस 3 टाइम्स -1/4 कितना आ जाएगा -5/4. 1/2 प्लस 3 टाइम्स -1/4 -1/4. 0 प्लस 3 टाइम्स -1/4 -3/4. और थर्ड रो एज इट इज है क्योंकि उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया. तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप. अब देखिए अब हमारा बचा क्या है. सारे पर्पस कंप्लीट हो गए हैं. हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो गए हैं. लोअर डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए हैं. अपर डायगोनल्स को हमें 0 करना है जिसमें से 2 0 है. केवल ये 1 जो बच रहा है ये वाला उसको हमें 0 करना है. ठीक है. वो कैसे होगा अब आपको समझ में आ रहा होगा. इस 1 को हमें 0 करना है तो हम इसी एलिमेंट का यूज कर सकते हैं क्योंकि थर्ड रो में तो इस पोजीशन पर 0 है तो इसकी हेल्प से तो ये 0 होगा नहीं. और आप अगर इंटरचेंज कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी. सपोज हम इस 0 को यहाँ ले आते हैं तो क्या होगा. ये वाली 0 भी यहाँ पहुंच जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा. लेकिन हमें आइडेंटिटी बनाना है तो हमें इसी पोजीशन पर रखना है तो हम इंटरचेंज नहीं कर सकते. हमें कोई ऑपरेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया R1 चेंज टू R1 माइनस R2. सो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0. बाकी दोनों में हमने कोई चेंज नहीं किया. यही ऑपरेशन हम किस में लगाएंगे इस मैट्रिक्स में. तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 यानी 7/4 माइनस माइनस 5/4 तो वो 3 हो जाएगा. 3/4 माइनस माइनस 1/4. 3/4 माइनस माइनस 3/4 तो उससे हमें R1 चेंज होके मिल गया. बाकी R2 एज इट इज है, R3 एज इट इज है. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या हो रहा है देखिए. सिंस LHS मैट्रिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो A हम लेके चले थे ये मैट्रिक्स उसको हमने रो ऑपरेशंस के थ्रू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू क्या किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो कन्वर्ट होने के बाद ये सारे ही ऑपरेशन जो अब हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई किए थे तो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस स्टेप पर चेंज होके मिली है वो क्या होगा A इनवर्स. क्यों होगा क्योंकि ये अगर आपको प्रॉपर्टी याद है A में अगर हम A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमें राइट हैंड साइड LHS में क्या मिला है लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इधर A है तो A के साथ हम एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दिस मल्टीप्लिकेशन इज गिविंग यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दैट मीन्स इट मस्ट बी इनवर्स ऑफ A. So that's why this is inverse of A. Clear? आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू A. तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस इक्वेशन से सो आइडेंटिटी LHS पर है क्लियर है. A RHS पर है क्लियर है. तो ये जो A इनवर्स है वो क्या होगा ये मैट्रिक्स होगी. सो दिस इज योर A इनवर्स. क्लियर. अब आप सोच रहे होंगे कि why only row operations, why we cannot apply column operation. We can apply column operation actually. So उस केस में आपको क्या करना है जैसे हमने ये लिखा है A is equal to identity into A लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में when we apply multiply identity matrix the multiplication is itself A is equal to IA और या फिर हम AI भी लिख सकते हैं. So अब आप क्या करेंगे A is equal to AI भी होता है. तो अब आप क्या करेंगे नाउ वी अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस टू रिड्यूस A ऑन दी LHS टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो LHS में A है अब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ओनली कॉलम ऑपरेशन. और जितने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सेम कॉलम ऑपरेशन हम अगर इस आइडेंटिटी पर भी अप्लाई करेंगे तो ये भी हमें इनवर्स दे देगा. एंड यू नो द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक. तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर. या आप एडजॉइंट A डिटरमिनेंट A वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो भी वही A इनवर्स मिलेगा. पहला प्रोसेस रो ऑपरेशंस यूज करके हम अप्लाई करेंगे ये गॉस जॉर्डन मेथड तो भी हमें A इनवर्स वही मिलेगा. अगर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इस वाली स्टेप को फॉलो करते हैं तो भी हमें यही A इनवर्स मिलेगा.
Clear? So this is the process. So very easy questions are there. Find the inverse of A. So if it is not written using elementary transformation, so this is default. अभी आप क्या कर रहे हो, आप उस स्टेज में नहीं हो, उस क्लास में नहीं हो वेयर यू फाइंड द इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए. हमें वो यूज नहीं करना है. वी हैव टू अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर ओनली रो और ओनली कॉलम्स. तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. आप ए इज इक्वल टू आई ए वाला या ए इज इक्वल टू ए आई वाला. अगर आई को लेफ्ट में रख रहे हैं तो आपको रो ऑपरेशन यूज करने हैं, आई को राइट में रख रहे हैं तो आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करना है. बस ये डिफरेंस है. क्लियर? बाकी सब कुछ सेम है. सो नाउ अब आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो नाउ what is A is equal to IA? So A is your given matrix, I is identity matrix of the same order. So what is the order of this A matrix? This is 4 by 4 matrix. 1 2 3 4 4 rows, columns 1 2 3 4 4 columns. So this is 4 by 4 matrix. So identity matrix का order भी क्या होगा? 4 by 4. Clear? So this is your A matrix, this is your identity matrix, and this is A. You keep it as A. Now अब आपका पर्पस क्या है? You have to convert this matrix A to identity matrix. Now अब आपको identity matrix को convert करने के लिए क्या करना है? सारे diagonal elements को 1 करना है. इसमें नीचे जितने एलिमेंट्स है लोअर डायगोनल एलिमेंट, उन सबको 0 करना है. अपर डायगोनल एलिमेंट्स को भी क्या करना है? 0 करना है. तो इन सबको 0 करना है, इन सबको 0 करना है, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 करना है. तो मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अभी बताया था कि कैसे आपको अप्लाई. ऐसा ही नहीं आपको जो दिख रहा है, आपको सपोज ये दिख रहा है, ये 2 2 है तो पहले इसको 0 कर दीजिए, ये 1 1 है इसको 0 कर दिए ना. अगर आप ऐसा करोगे तो बीच में कहीं आप फंस जाओगे. फिर क्या होगा? आप जिसको 0 करना चाहोगे वो 0 हो जाएगा, लेकिन जो आपने पहले 0 बनाया था वो नॉन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रखिए. what is that step by step process? First use this element and convert these elements 0. Clear? Use this first element and convert these elements to 0. But अगर इस पोजीशन पर 0 है, so we cannot convert any other element to 0 using this element. तो जिस एलिमेंट को हम यूज कर रहे हैं that should be a non-zero number. तो जब भी लास्ट वाले केस में क्या था? It is 1. The first element is 1. So using this one we can convert these two elements to 0. But अगर इस पोजीशन पर 0 है, so आप इस पर आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? इस 1 को 0 करना है यूजिंग दिस 0. लेकिन आप इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 ही रहेगा. तो इस 1 को कैसे इसको 0 करोगे? आपको केवल रो ऑपरेशन यूज करना है या कॉलम. बट हम रो ऑपरेशन की अगर बात करें, इस 0 से इस 1 को हम 0 कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इस 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, आप इसको 1 तो नहीं बनाएगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देंगे. और इस 1 को हम 0 बना नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सपोज कहो कि इसको ही 0 कर देते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा? इसको 0 बनने के लिए आप इस पर 0 का मल्टीप्लाई करोगे. बट दिस इज नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? वी कैन मल्टीप्लाई ओनली नॉन जीरो कांस्टेंट. अगर आप सपोज इसमें 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी रो ही 0 हो जाएगी. क्लियर? और पूरी रो अगर 0 होती है, दैट मैट्रिक्स इज नॉट नॉन सिंगुलर. क्लियर? आपको अगर इनवर्स निकालना है तो मैट्रिक्स शुड बी सिंगुलर, सॉरी मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर. बट अगर आपने 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी रो 0 हो जाएगी. और आपको पता है इफ एनी वन रो ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सो द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट exist. So we cannot multiply any zero number, zero constant to any row or column. So हम इसको अगर हमें इसको यूज करके इनको 0 करना है, so this is not possible. तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ नॉन जीरो नंबर चाहिए. सो नॉन जीरो नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? वी हैव फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन इंटरचेंज एनी रो. सो अब हम क्या करेंगे? we will interchange any two rows to make it this element non zero. तो आप क्या करोगे? इस 0 को नीचे वाले किसी भी रो से इंटरचेंज कर दीजिए कि ये नॉन जीरो हो जाए. आप इस रो R2 को भी यहाँ रख सकते हो, R3 को भी यहाँ रख सकते हो, R4 को भी यहाँ रख सकते हो. बट हम किसको रखेंगे? हम इस रो को रखेंगे. क्यों?
क्योंकि हम इस एलिमेंट का यूज करना है। तो अगर 1 यहाँ आ जाएगा तो 1 हमारे लिए कैलकुलेशन इजी करेगा। आप उस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा, उस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा। तो 1 में जिस नंबर का भी हमें सपोज इस 2 को 0 करना है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज 4 को 0 करना है तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 2 को यहाँ नहीं रखेंगे, हम R3 या R4 से चेंज नहीं करेंगे, हम किससे चेंज करेंगे, R2 से। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। सो द फर्स्ट ऑपरेशन मस्ट बी the R1 and R2 must be interchanged. So this is first operation. R1 is interchanged with R2. So now what is the reduced matrix? So this row will come here and this row will come here. So 1 1 2 3 1 1 2 3. So this is second row. Now this is first row. This will become first row. So 1 1 2 3. Next this is first row, but this will become second row. So 0 1 2 2. So 0 1 2 2. So this is the operation. Now अब हमने ये बाकी R3 और R4 तो वहीं की वहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। सो ये सेम ऑपरेशन वी विल अप्लाई टू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, ये इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो 0 1 0 0 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 0 0 0। नाउ नेक्स्ट द सेम प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बोला था, आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को यूज करके इसको 0 करना है, फिर इसको यूज करके आपको इसको 0 करना है, फिर इसको 0 यूज करके इसके नीचे 0 करना है। इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है तो आगे आपको नहीं करना। पहले हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स का यूज करके लोअर डायगोनल को 0 बनाएंगे, फिर या तो हम अपर डायगोनल को 0 बनाएंगे या फिर पहले इन सबको 1 बना लेंगे फिर अपर डायगोनल को 0 करेंगे, किसी भी ऑर्डर में। Clear? So first operation must be using this one. We have to convert these element to 0, क्योंकि हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है तो ये सारे क्या होना चाहिए 0। तो सेकंड रो में तो ऑलरेडी 0 है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। हम केवल किसको बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यूज किसका करना है, R1 का। सो R3 चेंज कर रहे हैं हम और R4 चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें इस R3 को 0 करना है और इस R4 को 0 करना है। रो 3 रो 4। सो 2 को 1 से कैसे 0 करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 में से माइनस कर देते हैं। सो R3 चेंज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। सिमिलरली ये भी 2 है तो R4 में भी सेम ऑपरेशन होगा, R4 चेंज टू R4 माइनस 2 टाइम्स R1। क्लियर? तो रिजल्ट क्या होगा, नाउ R3 और R4 चेंज है तो R1 एंड R2 आर अनचेंज्ड। सो R1 को आपने एज इट इज रखा, R2 को एज इट इज रखा, नेक्स्ट R3 को कैसे चेंज किया, R3 चेंज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। सो R3 माइनस 2 टाइम्स R1। सो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 यानी 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0। नेक्स्ट 2 माइनस 2 टाइम्स 2 मीन्स 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। नेक्स्ट 3 माइनस 2 टाइम्स 3 यानी 3 माइनस 6 माइनस 3। सो ये हो गया। नेक्स्ट R4 चेंज टू R4 minus 2 times R1, so 2 minus 2 times 1 0, 3 minus 2 times 1, so 3 minus 2 1, 3 minus 2 times 2 यानी 3 minus 4 minus 1, 3 minus 2 times 3 यानी 3 minus 6 minus 3। क्लियर? और सेम ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे। सो R3 चेंज हो रही है, R4 चेंज हो रही है, तो R1 हमने एज इट इज रख दी, R2 एज इट इज रख दी। नेक्स्ट R3 में क्या किया, R3 minus 2 times R1, so 0 minus 2 times 0 0, 0 minus 2 times 1 0 minus 2 minus 2, 1 minus 2 times 0 1 and 0 minus 2 times 0 0। ऐसे R4 0 minus 2 times 0 0, 0 minus 2 times 1 minus 2, 0 minus 2 times 0 0, 1 minus 2 times 0 1। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा पर्पस क्या है, तो अब हमने इसको यूज करके इसके नीचे 0 कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसको यूज करेंगे और इसके नीचे 0 करेंगे। ठीक? तो अब हमारा क्या होगा, देखिए इन्होंने क्या किया, R2 चेंज कर दिया, ये बुक का कोई क्वेश्चन है। तो मैंने बोला आपको कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको करना है। आपका पर्पस ये है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है। बट आप अगर मेरे प्रोसेस से चलोगे तो कभी फंसोगे नहीं, आपके सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने पहले इसको कर दिया है। बट आप जो मैं
मेरा सीक्वेंस, तो मेरा पैटर्न क्या है, आप क्या करेंगे, इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 करना है, तो इस 1 को यूज करके ये 0 0 करना है, ये तो ऑलरेडी 0 है, नो प्रॉब्लम, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हम R4 चेंज करना चाहिए, तो R4 चेंज टू क्या है, ये दोनों 1 है, तो R4 माइनस R3, तो ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, इस तरह से एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो किया है, ठीक है, हम वो देख लेते हैं, तो वही ऑपरेशन क्या आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, इसको यूज करके इसको 0 करोगे, इससे सारे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अब आप क्या करिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बना दीजिए, तो ये 1 है, ये 1 है, ये -2 है, तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको -3 से डिवाइड कर दीजिए इस रो को, फिर आप अपर डायगोनल को 0 कर लीजिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ए इनवर्स वुड बी यूनिक, वो चेंज नहीं होगा किसी भी ऑर्डर में, आप चाहे ये वाले ऑपरेशन अप्लाई करिए, चाहे मैं जो बता रहा हूँ वो ऑपरेशन अप्लाई करिए, योर आंसर वुड बी यूनिक, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए इनवर्स इज यूनिक फॉर एनी मैट्रिक्स। तो इन्होंने क्या किया है, R2 को चेंज कर दिया, R2 प्लस R3, सो R2 प्लस R3, सो 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 2 0, एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, क्लियर। सो नेक्स्ट, तो वही सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी लगाओगे, तो R2 चेंज टू R2 प्लस R3, 1 प्लस 0 0 माइनस 2, 0 प्लस 1 0 प्लस 0, तो वही चेंज होके ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अब इन्होंने क्या किया है नेक्स्ट अब इन्होंने क्या है, इसको 0 कर दिया है, तो इन्होंने जो समझ में आ रहा है उस ऑर्डर में कर रहे हैं, बट आपको जो मैंने पैटर्न बताया आप वो यूज करिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन फिर हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होंगे, कोई पैटर्न नहीं होगा, आपको सिंपली क्या करना है, डायगोनल को 1 बनाना है, बाकी सबको 0 करना है, तो जो ऑपरेशन आपको समझ में आए उस तरह से करना है, ठीक है। बट उसमें वही होगा कि हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे करें, ठीक है। सो इन्होंने वही किया है कि पहले अब इन्होंने इस 1 को 0 कर दिया है, तो इसलिए R1 माइनस R2 किया है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर R4 में भी इन्होंने क्या किया है, R4 माइनस R2, क्योंकि ये 1 1 है, तो इस 1 को इस 1 से 0 कर सकते हैं, तो 1 1 0 हो जाएगा, बाकी अनचेंज हो जाएगा। तो अब ये रिड्यूस हो गया, अब क्या करना है, इस 2 को 0 करना है, इस 4 को करना है, -1 को 0 करना है, और इस -1 को 0 करना है, और इसको भी करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, R1 प्लस R3, सो R1 प्लस R3 से ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2, सो 1 0 0 0, एंड 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1, ऐसे ही इस माइनस सॉरी क्या बोलते हैं, R4, सो R4 में इन्होंने क्या किया, इसको क्योंकि 0 करना है तो इन्होंने R3 का यूज किया, क्योंकि ये 0 0 है, सो इसमें क्या किया, इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई किया है और इसको माइनस किया है, सो 2 टाइम्स R4 माइनस R3, सो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, और ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -4, और माइनस माइनस प्लस 3, सो -4 माइनस प्लस 3 इज -1, सो -1, क्लियर। सो सेम ऑपरेशन आप किस पे लगाओगे, इस पर लगा दोगे। नेक्स्ट, अब आप कितना अब ये दोनों एलिमेंट बने हैं, तो R1 प्लस R4, क्योंकि इससे ये 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 0 0 है, ये तीनों 0 है, तो इन ऐड करने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें वही चाहिए, इस 1 को 0 करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, सो R1 प्लस R4, सो 1 प्लस -1 0, ये कंप्लीट हो गया। और बाकी R2, क्योंकि ये भी हमें 0 करना है, तो इसको में भी हम R4 का यूज कर सकते हैं, सो दिस प्लस R2 चेंज टू R2 प्लस R4, सो 0 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 0 -1, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि ये -1 है, ये भी -1, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 0 माइनस 0 1 माइनस 0 0 माइनस 0 -1 प्लस 1, सो ये भी 0 हो गया। बाकी हमने यही दो ऑपरेशन लगाए हैं, और R3 में इन्होंने क्या किया है, हाँ R3 में वो वही क्या है, क्योंकि इसको भी 0 करना है, तो इसको भी -1 की हेल्प से 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों 0 है, तो बाकी सब एलिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इसमें आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, सो वही क्या है, R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम्स R4, सो 0 माइनस 3 टाइम्स 0 0 माइनस 3 टाइम्स 0 -2 माइनस 3 टाइम्स 0 और -3 माइनस 3 टाइम्स -1, सो ये वाला एलिमेंट अब 0 हो जाएगा। सो आप सारे ऑफ डायगोनल 0 हो गए, तो वही सारे ऑपरेशन फिर आपने राइट हैंड साइड पे भी लगा दिए, तो वही राइट हैंड साइड चेंज हो गया। अब आपको केवल क्या करना है, आपको लोअर डायगोनल सारे 0 हो गए, अपर डायगोनल सारे 0 हो गए, केवल आपको क्या करना है, आप डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है, तो दो तो ऑलरेडी 1 है, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज -2, सो इसको आप क्या करोगे, -2 से डिवाइड करोगे, सो R3 चेंज टू -1/2 R3,
और इस -1 को भी +1 बनाना है, तो इस R4 को क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -1 से डिवाइड कर दीजिए। सो क्या होगा, ये भी 1 बन जाएंगे। और सेम ऑपरेशन आप इस वाली मैट्रिक्स पर भी लगाओगे, राइट हैंड साइड में जो चलती आ रही है। तो ये बन गया आपका A इनवर्स, क्योंकि अब ये आइडेंटिटी बन गया, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, A इनवर्स। सो दिस इज योर आंसर, मीन्स दिस मैट्रिक्स। अब वही सारे क्वेश्चन है, अब आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो हम व्हाट्सएप पर या लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगेन फाइंड बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें रो ऑपरेशन बोला, दैट मींस वी हैव टू यूज रो ऑपरेशन ओनली। हम वो दूसरा वाला पैटर्न यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला। बट इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि इधर दे हैव मेंशन्ड देन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, so they have not mentioned any particular form, elementary row operation or column operation. So here in this case we can apply row operation or column operation, but in this case we have to use only row operation because they have mentioned it, that use only elementary row transformation to find out the inverse. So this is your A matrix. A is equal to IA, क्योंकि आपको row operation use करना है, so we have to use identity on the left hand side. So this is your A, this is your identity, because this is 3x3 matrix, so identity is also 3x3 matrix. Now अब आपको मैंने बोला था, you have to use this element to make these elements 0, but this is 0, so we have to interchange this. So interchange किससे करोगे, R3 से करोगे तो ऑपरेशन थोड़े ज्यादा होंगे, बट क्योंकि हमें 1 मिल रहा है तो हम 1 से सबसे पहले प्रेफरेंस हमारी क्या होगी, जो इसमें पहला एलिमेंट 1 है उस रो से हम इंटरचेंज करेंगे टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। सो हमने R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया, ये बन गया। अब वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आप 1 को यूज करके इन सबको 0 करोगे, तो ये वाला तो ऑलरेडी 0 है, तो केवल इसको 0 करना है, यानी R3 को। सो R3 में आप क्या करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे और इससे माइनस करोगे। सो R3 माइनस 3 टाइम्स R1। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड में हमने चेंज कर दिया, और यही वाला ऑपरेशन हमने इसमें भी अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस -5 को 0 करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब R2 को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप R1 का अगर यूज करोगे तो ये 1 इसको नॉन जीरो बना देगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसको 0 ही चाहिए। सो हम R2 का यूज करेंगे। सो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। सो इसलिए ये वाला ऑप्शन R3 चेंज टू R3 प्लस 5 R2। सो 5 प्लस 5 माइनस 5 0, एंड दिस इज -8 प्लस 5 इंटू 2, यानी -8 प्लस 10, यानी 10 माइनस 8 2। सो दिस इज 2। सो ये 0 हो गया। बाकी इस 2 को हम इस 1 से भी 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमें 1 ही चाहिए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 0 कर देते हैं, तो R1 में हमने फिर से चेंज कर दिया, R1 माइनस 2 टाइम्स R2। सो 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, 3 माइनस 2 टाइम्स 2, यानी 3 माइनस 4 माइनस 1। सेम ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड में भी लगा दिया। अब हमारा क्या बचा है, लोअर डायगोनल सारे 0 हो गए, अपर डायगोनल बचे हैं, तो अब हम इस 2 का यूज करके इन दोनों को 0 कर सकते हैं। आप क्या करिए, R1 चेंज टू R1, क्योंकि ये 2 है -1 है, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। सो 1/2 R3, सो इससे हमारा -1 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस 2 को इस 2 से 0 करना है, तो सिंपली R2 चेंज टू R2 माइनस R3, तो इससे भी ये वाला 0 हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, और यही दोनों ऑपरेशन हमने राइट हैंड साइड में लगा दिए। अब हमारा केवल क्या चीज बचा है, इस डायगोनल को 1 बनाना। तो ये 1 ऑलरेडी है, ये 1 ऑलरेडी है, इस 2 को 1 बना देते हैं, तो R3 चेंज टू 1/2 R3। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और सेम ऑपरेशन जब हम राइट हैंड साइड में लगा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, A इनवर्स। सो वही सारे क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही ट्राई करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वही है, ये A है I A करके। अब इन्होंने क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 1 पहले बना लिया है, अदरवाइज आप 3 का भी यूज कर सकते हो, है ना। तो बाद में आप इस 3 को 1 बना दीजिएगा, पर इन्होंने पहले क्या किया है, R3 माइनस, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो R1 को पहले चेंज कर लिया, R1 माइनस R2, तो 3 माइनस 2 ये 1 बन गया, बाकी जो भी होना था। लेकिन ये कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है। आप क्या करिए, पहले इस 3 का यूज करके इन दोनों को 0 करिए, फिर इस -3 का यूज करके इसको 0 करिए, और फिर आप क्या करिए, अपर डायगोनल को 0 करिए, और फिर डायगोनल को 1 कर दीजिए। किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू मेक दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे आपको समझ में आता है, जिस ऑर्डर में आपको करना है उस ऑर्डर में आप कर सकते हो, ठीक है।
सेम क्वेश्चन 4x4 मैट्रिक्स है, तो पहले ये -1 है, आप इसको इसने देखो इस केस में इन्होंने -1 को ही -1 रखा है और इन तीनों को 0 किया है, ये देखिए ये तीनों 0 गए, एक बार इसमें ऐड कर दिया है, फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, फिर माइनस कर दिया है, तो तीनों 0 गए। तो किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया है, -2 को पहले 1 बनाया है, तो इसको -2 को 1 बनाया है, फिर इन दोनों को 0 किया है, इन दोनों को 0 किया, फिर -3 को 1 बनाया है, तो फिर बाकी को 0 कर सकते। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि ए को आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। सो सारे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व क्वेश्चन है, ये अनसॉल्व क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको गिवन है, सो यू कैन वेरीफाई द आंसर्स। If you face any problem, we can discuss that problems in the live lectures. So next topic would be rank of a matrix.